Hello, everybody. Hello, everybody. Hello. Hello. Hi, Assalamu alaikum. So, who all are there? Not that I can see everybody, I can see. There's eight people here. Eight participants. And Okay. thank you for doing it on Zoom. We can Yeah, join then. Thank you. yeah. I thought that would be more feasible for a lot of people rather than a in-person meeting which restricts mobility and everything. तो हमने कहा कि चलो हम इसको Zoom पे कर लेते हैं और so yeah, should we start and then people can join in if they wish to? We can wait for a couple of more minutes. Okay. Usually we do hybrids and it usually takes about I 5-ish know minutes. for people to connect and yeah, Yeah. Yeah. to find the connection, and sometimes it doesn't work. Mine wasn't working and I was like, oh my God, I was panicking. So Yes. I tried different options of all the internet options that I have and one worked. So May I share something? yeah, bilkul. Women's Action Forum Karachi had converted to Zooms in COVID. And then when COVID ended, they said, okay, let's go back to our own patterns. But then some of us had moved, etc. So after, quite a substantial effort, now we are doing hybrids as well. Zooms I find to be more streamlined. But hybrids, of course, people want to meet for social also. But it's kind of, going good. So what I was going to suggest was, okay, instead of doing it solely, like if your connection doesn't work or whatever, if 2 or 3 people can get together, then it helps also. Just my observation. Yeah. You're absolutely right, Nasreen. I mean, I think in December we will probably be having one at T2F because Khalid Saab yesterday also messaged me and we had a chat. He said that, he would very much want us to do something there. We did one 2-3 months back with the team of Sultana Siddiqui and Safi Hassan. And so I said, okay, I'm going to be back in December and then we'll do something at T2F. And maybe next month we'll do a part 2 of the same thematic area because there's so many dramas and I've been getting lists after lists from, all my contacts. कि इसको भी रख ले, इसको भी रख ले, इसको भी रख ले. And I said, okay, in 1 hour or maybe 1.5 hour, it will not be possible. So maybe a part 2 next month for the plays that are still continuing. And today we may just discuss those that are, or have been talk of the audience and everybody. अच्छा, तो So तस्नीम, इस बात में मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी. एक तो ये है कि जो जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रेजिंग ऑफ हैंड्स yeah, और उसके लिए मॉडरेटर होता है. और दूसरी बात यह है कि मुझे ब्लैक होल का फॉर्मेट बहुत पसंद आता है बिकॉज दे डू इट फॉर मे बी इवन अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बट देन दे पुट एवरीथिंग ऑनलाइन. तो हमें हाँ, सोशल एक्टिविस्ट को ना अभी तक मेरे ख्याल में मीडिया बहुत अच्छी तरह यूज करना, शायद उतना इफेक्टिवली यूज करना शायद नहीं आ रहा जितना इफेक्टिवली यूज हो सकता है. आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन. नहीं, you are right. Black hole in Islamabad, you mean? ब्लैक होल इन इस्लामाबाद. और वो हाँ, उनका ये होता है कि वो yeah, हर because प्रोग्राम मैंने अपना बहुत डालते हैं सारे जैसे टी देख टू एफ हाँ. में. जैसे टी टू एफ में आप करें और फिर हम्म, उसको अगर ऑनलाइन डाल दें तो फिर वो बहुत. और हमें सोशल, जो हमें एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और मेरा ख्याल है कि देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल इन दैट. बिल्कुल. हमने मीडिया को भी इनवाइट किया है. होपफुली देयर इज अ मॉडरेटर, Shehzad is there, who's going to lay down all the rules that we always follow, like raising your hands and not talking out of your turn or not interrupting and not making personal remarks. And there are a lot of things that we like to follow in our meetings so that it goes not only just smoothly but it's also
sensitized and sensitive. So we'll just wait for another maybe like 5 minutes. Sherzad, what do you say? Sure, I think we can start because it's like an hour long. So, it's 5 minutes already into the meeting. Let's wait another 2-3 minutes and then शुरू करते हैं. ठीक है. शुरू कर भी सकते हैं लोग, बस अब आते जाएंगे मेरे ख्याल में. They're slightly increasing the numbers, And slightly we'll increasing. keep on repeating the rules and the principles because वो हमें खुद भी अपने आप को याद दिलाना होता है कि okay, and और since बस T2F online डाल दीजिएगा. हाँ, if somebody can do that, I am so technically challenged that I just कराची में मेरा ख्याल है you'll find people, आपकी टीम पे भी डिपेंड करता है, वो मिल जाएंगे. वो बहुत आसान है. okay. मैं भी टेक्नोलॉजी में वही जनरेशन हूँ, लाइक टेक्नोफोब नहीं, टेक्नो लैगर, टेक्नोफोब. मेरा I तो see ये the है कि potential. I yeah, see the potential. I mean, I try to learn, but it takes a long time for me to get to something which has not been there when I was growing up, or now I'm so old that No worries, टेक्नोलॉजी इतनी तेज जा रही है कि यंगर जनरेशन भी बैफल रहती है, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है. शहरजाद, let's begin. yeah. True. Right. So, Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to all of you joining us for, love, abuse, and patriarchy. What are Pakistani dramas normalizing? I'm very glad that you could join us. बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब हम बैठ के ड्रामों की बात करते हैं, because अब ड्रामे जो हैं वो सिर्फ entertainment नहीं रहे हैं. पाकिस्तानी ड्रामे जो है they're reaching millions, in Pakistan and abroad, and they to some extent they're shaping how we see, love, gender, family, and I guess power also. So the big question we're asking today is, are our dramas inspiring social progress, or are they glorifying toxic love and patriarchy? हमारा प्लान ये था कि हम 3 ड्रामों पे फोकस करेंगे. फॉर इंस्टेंस परवरिश, मैं मंटो नहीं, एंड केस नंबर 9. बट you're welcome to bring in any other dramas that you think need to be talked about. अब there are certain guidelines for today's discussion. एक तो obviously कि we have to respect everyone's opinion. It's all valid. जो कह रहा है वो valid है. तो आप please let's listen to everyone without interrupting. And again, no personal attacks. We can critique ideas, but not people and not individuals. And then, let's stay on topic. Keep the comments focused on the dramas जिनका मैंने अभी mention किया है, जैसे परवरिश, case number 9, मैं मंटो नहीं. इन पे हम we're trying to keep the focus on these dramas, but as I said, कि अगर you want to talk about some other drama, please feel free to do so. Keep your comments limited, between 1 and 2 minutes is, I think, ideal, so that everybody gets a chance to speak. Or obviously it goes without saying, no offensive comments, please. And we are recording the whole meeting, so please do not record at your end, and please do not share either. And again, please raise your hand. If your camera is on, you can raise your hand like this, or you can use the Zoom feature to raise your hands. So with that in mind, let's get started. So I'd say let's begin with, what's one drama or a moment in a drama or a character that stayed with you for good or bad reasons. So let's begin with that. Who wants to go first? All right, so I think I'll start. I'll start with Parvarish, because I found it different from the usual dramas that I've been following and watching for all these years. 2-3 चीजें थी उसमें, परवरिश में.
उसमें भी काफी सारे इश्यूज थे जो हमें आए, जो हमने फिर बताया भी, और फिर कुछ चीजें हमारी सही भी, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट भी की। बट ओवरऑल आई थिंक एक तो फोकस ऑन द यूथ, एक फ्रेशनेस थी, मुझे एक फ्रेशनेस नजर आई थी उसमें। मेंटल हेल्थ के इश्यूज को उठाना, एक जो डायनामिक्स होती हैं दो डिफरेंट तरह के पेरेंटिंग में, एक कंट्रोल्ड और एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, वो तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि बच्चे और बड़े दोनों उससे कुछ सीख सकते थे और सीखना चाहते। तो जो प्रॉब्लम हमें जहाँ पे आया था, जो शहरजाद को भी पता है, हमें भी पता है कि हमने और हमने ये पॉइंट आउट भी किया, अपनी पोस्ट भी लगाई हमने इस पे, कि उन्होंने जब वो दिखा रहे थे सीन ऑफ दिस गर्ल was going through a mental stress and she wants to end her life, there wasn't any trigger warning. क्योंकि whenever you are showing anything that's traumatic or for mental health or for any reason, there has to be a trigger warning. तो हमने ये indicate किया था, और next episode में उन्होंने वो trigger warning डाली थी. So we thought that this was great thing for us, कि हमने नोटिस किया, हमने उन तक बात पहुंचाई और उन्होंने मान ली। मगर उसमें एक वन ऑफ द डायलॉग्स दैट इज स्टक टू माय माइंड, और जो हमेशा हमारी कॉन्वर्सेशन में, चाहे वो पार्लियामेंट में हो रही हो, चाहे वो ऐसी आम जिंदगी में हो रही हो, वो बहुत ज्यादा फोकस करती है। एक जुमला आता है, एंड देयर आर दीज फोर बॉयज जो समीर के दोस्त होते हैं, हु आर अर्जिंग हिम टू जॉइन सम पार्टी एंड ही डजंट वांट टू। वो कहते हैं कि अच्छा इसको तो पैम्पर भेजना चाहिए। देन द अदर बॉय सेज नहीं, पैम्पर नहीं भेजें, डायपर नहीं भेजेंगे, इसको हम चूड़ियां भेजेंगे। Now that चूड़ियां thing, for me and for us and for everybody who has a sensitive mind, is a problem. चूड़ियां is not a sign of weakness. So हम इसको जब एक कमजोरी की निशानी बनाते हैं, तो वो बहुत डीपली आपके अंदर, बिकॉज औरतें चूड़ियां पहनती हैं और आप औरतों को ही टारगेट कर रहे हैं। सो परवरिश में मुझे ये चीज नजर आई, और I think I'll let others speak and take the conversation forward. Yes, please, Angie, you can speak up. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सॉरी, मैं गलत दरअसल बैठा हुआ है. So I would like to add to ma'am's point on Parvarish, and which I think it's high time that Pakistani dramas start doing this too, is that they show married couples acting like normal married couples. Parvarish में जो चीज़ मुझे impressive जो लगी है is that basically the parents of the children, technically three couples or four if you could add the grandparents in this case, they all acted like normal married people. हमारे ड्रामों में अक्सर ये पोर्ट्रे किया जाता है कि like a couple, they're either acting like lovers in which they're obsessing over के वो दूसरी बीवी आएगी तो क्या होगा, या even when they're showing the patriarch being abusive, their abusive act becomes so comical and it gets so mainstream in every other drama कि आप तंग पड़ते हो, सोचते हो कि यार बस हमारे ड्रामों को सिर्फ अब्यूजिव लोग ही दिखाते आ रहे हैं. And while I don't say that that shouldn't be shown, it's just that at a certain point there are other realities too. What I liked about Parvarish is specifically with Wali's parents is that they had issues, they had their arguments here and there, lekin they acted like a normal couple in that they were like showing their problems together. They weren't acting like unke arguments bhi, they sounded like normal people having their arguments. And I sometimes think that in our portrayal of marriage, we don't show people having heated discussions or having serious issues, and still the man and the woman, they still are a couple at the end of the day, which I found very very refreshing. उसमें स्पेसिफिकली एक और भी चीज है कि जो लड़की, उसमें जो कैरेक्टर माया के जो अम्मी अबू हैं, वो फिर भी थोड़े से स्टीरियोटिपिकल वाले कपल बनते हैं, इन दैट द फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श, एंड गुस्से के मारे वो किसी पे भी हाथ उठाते हैं.
But what astounded me in that scene was that when Maya's mother comes to her defense, अब ऐसे ड्रामों में इस तरह होता है कि जब कोई औरत आवाज उठाए तो या तो मर्द उस पे हाथ उठाते कि तुम ऊंचा क्यों बोली हो, या तुम्हें, या they start enacting revenge on her for speaking up. But after that episode, even the husband did not bring it up again. In fact, he respected her for being assertive, and he also started listening to her even more, which I felt was very refreshing on its own. Because I really feel that if you're showing married people, then you should show a variety of married people and not just caricatures. Great. Right. Thank Anji. हाँ जी, who else? अभी हमने सबसे ज्यादा जो हमारे हॉपस्कॉच पे डिस्कस होता है, मैं मंटो नहीं हूँ, उस पे तो हम आए नहीं है अभी तक. Gul Jafri, I think, wants to add. Okay. Yeah, And because it is so Rafi. funny. Hi everybody. It is so funny. मुझे कहीं hand raise वाला मिल ही नहीं रहा है. मैं भूल गई हूँ. Haven't done probably Zoom with the hand raise. मेरे फोन पे reactions में आता है. Reactions अच्छा, का एक heart का. reaction का आ रहा है. एक reaction is a new word I'm known to say. नहीं पता नहीं, ये मेरे फोन पे है तो हार्ट बना हुआ है और रिएक्शंस बना हुआ है, उसको आप टैप करके देखें. अच्छा, तो मैंने फिर इसको unmute कर लिया. Because मुझे I just want to revisit this thing about depiction and validation. So if some of the things are depicted, how to deal with depiction of misogyny or all of it. चूड़ियां पहनते हैं, ये कहा जाता है, ये दिनों रात कहा जाता है, ये हम अपने ड्राइंग रूम में भी सुनते हैं. तो उसको पासिंग में अगर डिपिक्ट करा है किसी में, कि बच्चे ने कहा है, which is still for want of new metaphors and new references, बच्चे छोटे जो थोड़ी बहुत चीजें अभी रह गई हैं, यार तुम तो बिल्कुल औरत हो रहे हो, राइट? सो और या तुमने चूड़ियां पहनी हुई हैं क्या, कि तुम ये नहीं जाके बाहर पुलिसमैन से कह रहे हो कि ये घर में चोरी हुई है, something like that. So I'm seeing, where do we draw the line of depicting that it is going on, if the drama carries on, to not validify it or let it stay on as a valid thing? Is that then it is probably all right to reflect on and off? Yes, educated, very high-ranking people are continuing the metaphors, for want of better things. Their own household females continue to, let it pass. As Tasneem, I noticed, does show her reaction in a private event also, if there are these references being done in passing. But I spoke like with my own daughter, who has strayed away from this, कि मामा मैं किस मुंह से तस्नीम मामी के उस पे जाऊं, जब मैंने खुद ही एक ड्रामे में काम किया जिसमें both I and my husband, who's a good actor himself, do not agree with the timeline, but for pure economic reason we have signed. So my questions are two at the moment. I'd like you to explain to me, should we let, like even Manto or Ismat Chughtai or Krishan Chandra or Quratulain, let depict some things from society and left it for us to extract what we wanted to, number one. Number two, should actors be called out, or is it director, writing, production, house, and the continuous many dramas? 70% are still on that. 30 have really, Parvarish being one of them, have really, Zard Patto Ka Band previously, have already reached a certain height of controlled, mature, and acceptable narrative. So who do we call out in this case? Okay. So if I can answer. I have my hand up. Yeah. Okay, let me just answer to Gul and then it's you. Okay. Yeah, this was an answer as well, but go ahead. No, very, very quickly. Gul, there are two things. Whenever there is a sentence like, churiyan pehenna, there's aurat ho. What happens in our dramas is कि उसके बाद कोई
रिएक्शन किसी और, देयर वर 4 बॉयज, वन ऑफ देम कुड हैव सेड कि यार ये क्या तुम पुरानी बातें कर रहे हो, यू नो, दैट वे हाँ, वी करेक्ट इट, ओके, यू नो, दैट इज राइट, हाउ वी राइट, करेक्ट द रॉन्ग। अच्छा, दूसरा ये कि इस्मत चुगताई मंटो, ये कृष्ण चंद्र, वो लिखते थे, लिखाई में और अब जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है, देयर इज जमीन आसमान का फर्क। लिखने को समझना बहुत मुश्किल होता है, देखने को समझना और अपनाना बहुत आसान होता है। सो यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। वो जो उन्होंने लिखा वो हमने समझा, पढ़ा और फिर समझा, और फिर हमने उसमें से चीजें निकाली। बट अब जो हम देख रहे हैं उसको हम सिर्फ देख रहे हैं और फिर हम उसको ब्लाइंडली समहाउ फॉलो कर लेते हैं। सो मेरा हमेशा ये होता है कि एक काउंटर नैरेटिव फौरन तुरंत आ जाना चाहिए कि देखे 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, अगर एक ने गलत जुमला कहा भी, दूसरा फौरन उसे कह दे कि यार आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो, चूड़ियां पहनने जो है ये बहुत पुरानी चीज हो गई, फजूल बातें हैं। सो सुनने वाले को, देखने वाले को एक मैसेज मिल जाएगा कि ये एक गलत जुमला था। आई विल एंड हियर। जी, आप नसरीन, आप कुछ कह रही थी। Gee, Gul, to respond to you, we don't condemn actors or whatever. Patriarchy is very, very ingrained. तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो एक्शन हमें दिख रहा है उसके ऊपर फौरन रिएक्शन दें, और उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी. It's not an overnight thing. It's not a quick fix. But pointing out to what we feel is wrong is the first step. Thank you. I think Rafia Arshad was, wanting जी to say something for a while. So, अब आप, you can unmute yourself. जी, रफिया। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रफिया हूँ और मोस्टली मैक्स के साथ ही काम करती हूँ और मेरा ये बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह किसी भी फोरम पे, स्पेशली ड्रामास के हवाले से बात करना। मैं कम ड्रामा देखती हूँ, लेकिन मैंने परवरिश को देखा और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं कि जो आपको लगता है कि वो एक आप रिलेट कर सकते थे उस पे बहुत सी चीज़ों को। और स्पेशली जब मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों को देखती हूँ और उनके प्रॉब्लम्स को देखती हूँ, तो उन्होंने बड़ा, वो कहते हैं ना, हिट द नेल, उन्होंने एट वेरी वेरी राइट टाइम। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिस तरह अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि तुम क्या औरतों की तरह मुंह बना के बैठे हो, या तुम्हें क्या कहना, तुम्हारे तो औरतों की तरह नखरे शुरू हो जाते हैं। जब तक मुझे लगता है कि हम सब लोग जो स्पेशली इस तरह से मीडिया के हवाले से काम करें और देखते हैं, और अगर हर एपिसोड के बाद फौरन उसका काउंटर रिस्पांस दिया जाए, फौरन पोस्ट लगाई जाए, या हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम उस पे फौरन जाके बात करें कि आज के एपिसोड में ये हुआ, इस तरह से हुआ, ये डायलॉग्स थे, इस तरह की बात थी, उसमें अगर मारपीट दिखाई गई है तो वो नहीं होना चाहिए था। पहले जब ड्रामास लगते थे वो सिर्फ टीवी तक होते थे, क्योंकि, लेकिन अब ड्रामा सिर्फ टीवी तक नहीं रह गया, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया में समझा भी जाता है, जहाँ पे उर्दू जुबान को समझा जाता है। तो उसका देखा जाए तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 3 साल पहले कीनिया में थी और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ पे तकरीबन 90% इंडियंस थे। तो एक खातून मुझे कहती हैं, आपके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन आपके ड्रामों में बड़ी तंगी होती है, बड़ी उसमें ना लगता है आपका जो सेंसर बोर्ड है ना वो बड़ा टाइट है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें नहीं दिखाते हैं, उसमें इस तरह से नहीं होता है। तो क्या ये आप लोग या जिस ड्रामों में दिखाते हैं, तो क्या ये आपकी सोसाइटी में होती हैं ऐसी चीजें? मैंने कहा सोसाइटी में, हर सोसाइटी में सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हाँ ठीक है, हमारे ड्रामों में वो बहुत कुछ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो हमारे क्या कहते हैं, उस तरह से सोसाइटी में नहीं हो रहा जो तुम लोग देखना चाहते हो। उसका मतलब था कि आप लोगों के ना उस तरह के ड्रेसेस होते हैं, ना आप उस तरह से दिखाते हैं कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, या उस तरह की पार्टीज नहीं हो रही, उस तरह की चीजें नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि अब ड्रामा सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे ड्रामास बाहर देखे जा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, लोग उससे क्या क्या ले रहे हैं, समझ रहे हैं हमें, हमारी सोसाइटी को और हमें। मुझे किसी ने ये कहा कि पाकिस्तानी ड्रामास क्या इतने मॉडर्न हो गए या हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई है। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था कि ड्रामास मॉडर्न है या सोसाइटी मॉडर्न है, या दोनों चीजें ही कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रही हैं। तो जहां से मैंने बात की थी कि हमें काउंटर
रिस्पॉन्स फौरन देना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास कोई एक स्पेशल प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि हर एपिसोड की वहाँ पे बात हो, और इस तरह से टीम एक्ट्रेस तक बात, जो एक्टर्स हैं उन तक बात पहुंचे, जो ड्रामास बना रहे हैं उन तक बात पहुंचे, जो ड्रामास लिख रहे हैं उन तक बात पहुंचे। थैंक यू। Thank you so much, for your feedback, for your opinion on this. और इसके बारे में कोई और, I think Inji, you want to say something? And Khabar Mumtaz, I think she wants to say something also. जी So जी, जी मैं खाबर हूँ, पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं। बिल्कुल दिख रही है खबर, जी अच्छी लग रही है। हाँ नहीं, मैंने परवरिश तो नहीं देखा, लेकिन जो अभी राफिया ने बात की इसके हवाले से मैं कुछ सोच रही थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर भी करूं कि ये हमारे जहन में अक्सर होता है कि ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस तरह के रोल्स क्यों कर लेते हैं। अक्सर तो बहुत नेगेटिव रोल्स होते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि सिलेक्ट करें ज़रा से अप्रोप्रिएट रोल्स। मैं तो अपनी बेटी के हवाले से ही बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे उसने कहा, अभी किसी ने कहा भी कि जब आपका प्रोफेशन ये है, एंड इफ यू आर इट्स योर प्रोफेशन, देन यू समटाइम्स टेंड टू टेक थिंग्स, क्योंकि हर चीज़ आपकी मर्जी की स्क्रिप्ट नहीं होती। आप कुछ हद तक स्क्रिप्ट को तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई भी जो हमारे टीवी के राइटर्स हैं उन पसंद नहीं करते कि उनकी स्क्रिप्ट पे कोई आवाज उठे या उसको करेक्शन दी जाए। तो एक तरफ तो जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं वो समझते हैं कि भाई हमारी हमें एक्टिंग करना है, जो भी स्क्रिप्ट है हम एक्टिंग करें और अपना काम पूरा करते हैं, और उस स्क्रिप्ट के साथ जितना ऑनेस्टली काम कर सकते हैं करें। लेकिन जो मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ ड्रामे, मैंने परवरिश नहीं देखा, लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ और वो दूसरा केस नंबर 9 देख रही हूँ। तो मुझे उसका आमतौर पे जो है अक्सर उसमें मर्द काफी टॉक्सिक दिखाए जाते हैं, मेल फीमेल परवरिश में लगता है कि जरा बेहतर रिलेशनशिप दिखाई है हस्बैंड वाइफ की, वरना मियाँ सख्त मिजाज और या बिल्कुल ही निकम्मा सा दिखाते हैं, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये निकम्मे इंसान है, इनको तो और तरह का रोल मॉडल होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन सबसे अच्छे ड्रामे में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी बात लगती है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह कहा जाए। पर आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हम कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बहुत टॉक्सिक किस्म की रिलेशनशिप दिखाते हैं, और अब कुछ मैंने ये भी देखा है कि ड्रामों में फिजिकल अब्यूज बहुत होने लगी है, मारपीट, थप्पड़ मारना, धक्के देना, बाल पकड़ के खींचना। दोज आई फाइंड दैट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि वो जरूर नॉर्मलाइज हो जाता है कि अगर ड्रामे में दिख रहा है तो क्यों हम भी कर लें घर पे। तो आई थिंक सम ऑफ दोज थिंग्स आई फाइंड वेरी ऑफेंसिव। वील हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम हर चीज पे बात उठाएं, या जो बहुत अहम चीजें हैं जिससे कि कम्युनिकेशन एक यू आर कम्युनिकेटिंग अ वेरी लो स्टेटस फॉर वुमेन, उसको उठाएं, अनलेस कि स्टोरी में वो कहीं निगेट होते हुए दिखता है, चैलेंज होते हुए दिखता है। तो ये तो जिस जनरल कमेंट होगी, मैंने मंटो पे ज्यादा कमेंट करूंगी। जी जी, Just one quick comment. जी जी, मैं ये कह रही थी कि एक तो इंडिविजुअली फॉरन रिएक्ट करें, क्योंकि अब ड्रामो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन राफिया की मुझे ये तजवीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जिसकी वक़्त हो, अगर उस वो भी मतलब एक हम डेवलप कर सकें जिसकी बात सुने जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो दैट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया। सो बोथ इंडिविजुअली एंड टुगेदर। थैंक यू। ओके। सो अभी जो खबर भी बात कर रही थी और उससे पहले भी हुई है कि एक्टर्स और जो जो काम कर रहे हैं वो सारे, हाउ मच कैन वी पुट द बर्डन ऑन देम, या फिर हम जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन पे बात करें, या हम डायरेक्टर से बात करें, या राइटर्स पे बात करें। तो आई थिंक जिम्मेदारी सबकी होती है। कोई भी बिना जिम्मेदारी के कोई काम नहीं करता, और स्पेशली आज के जमाने में स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और स्क्रिप्ट पढ़ के इफ यू आर अ थिंकिंग पर्सन, फिर उसको मना कर देना, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड बी इनकरेज्ड, कि हम ये नहीं करेंगे या ये इसको यहाँ से निकाल दें। बिकॉज मनी इजंट एवरीथिंग, एंड वर्क will come to you if you're a good actor. So we cannot say कि जी हमें इतना हम मजबूर हैं काम के लिए कि जी हमें ये रोल करना ही करना है।
बेशक इससे माशरे में जो है वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट ज्यादा फैले, टॉक्सिक एटीट्यूड ज्यादा फैले। खबर ने ये भी बात की कि अब शायद ज्यादा दिखाने लग गए हैं फिजिकल अब्यूज। नहीं, खबर ये बहुत शुरू से, आई रिमेम्बर जब मैं मुनीजा हाशमी के साथ काम कर रही थी ऑन पीटीवीज ड्रामा, उस वक्त भी हम इसी पे करते कि थप्पड़ क्यों दिखाते हैं आप। तो ये था कि जी थप्पड़ नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि जी माशरे में थप्पड़ पड़ते। तो हमने कहा दिखाने के लिए औरत को मारते हुए दिखाना जरूरी नहीं है, आप और तरह से भी इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंट थिंकिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड ऑल्सो हाउ यू काउंटर अ नैरेटिव। आई थिंक काउंटर नैरेटिव पे मेरा बहुत ज्यादा जोर होता है, अक्स का भी बहुत ज्यादा जोर इसी पे होता है कि काउंटर नैरेटिव हम कैसे लेके आते हैं। हर चीज पे जो रिएक्शन है, वी ट्राई, शेरजाद इज देयर, आई थिंक माय टीम इज देयर, कि हम फौरन एक पोस्ट बना दें। बट ऑब्वियसली अक्स एक छोटा सा इदारा है, उसकी इतनी बहुत बड़ी कोई रीच नहीं है। सो अगर, और हॉपस्कॉच भी है, बट ऑब्वियसली अगेन हॉपस्कॉच इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लिमिटेड। तो औरों के पास अगर कोई तजवीज हो इसको आगे लेके जाने की, किस तरह मीडिया इसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, even social media, other people, then obviously, if we are all together on it, we certainly can make a difference, and I think we should try. Thank you. Shehzad, can we move on to the next play? Yeah. Biden? No, I couldn't unmute myself. Hear me? सारा का हाथ ऊपर है, सारा वहीद का हाथ ऊपर है। अच्छा, okay. Assalamu alaikum. I hope you can hear me. Yeah. मेरा यहाँ पर एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाह रही थी। एज अ मीडिया एजुकेटर मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि जब कोई ड्रामे इस तरह के बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रहे होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे जाकर उन ड्रामों के नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तफसील से देखती हूँ। परवरिश के हवाले से मेरा बहुत एक खास मैंने जो चीज़ नोट करी वो ये थी कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उस पर बहुत पॉजिटिव एक डिस्कशन लेके चल रहे थे, जिसमें कुछ बच्चे ने बाकायदा ये कहा कि जैसे वो वली के कैरेक्टर से रिलेट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारी वालिद साहब से मुलाकात जो है वो एक अरसे तक नहीं हुई है। और बाकी जो लोग उस कॉन्वर्सेशन में शामिल थे वो बाकायदा उस बच्चे को ये कह रहे थे कि तुम पहली फुर्सत में जाके वालिद साहब से मिल लो और उनसे दोबारा ताल्लुकात बेहतर करो। और बहुत एक मुझे समहाउ मुझे कुछ लम्हे के लिए बाकायदा गूज़बम्प्स महसूस हुए, क्योंकि मैंने नोट किया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मुझे रिएक्शन नजर आ रहा था वहां में कि ना सिर्फ लोगों ने रिलेट किया बल्कि उसको अपनी जिंदगी के साथ उन्होंने रिलेट करके ये देखा कि हमने इससे एक सबक सीखा और हमें ये चीज सही कर लेनी चाहिए। तो परवरिश में मैंने एक ये चीज बहुत अहम नोट करी कि उसको बच्चों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया और यहाँ तक कह रहे थे लोग कि पहली दफा हमें अपनी झलक ड्रामे में नजर आई कि हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे मसले पे बात हुई। और साथ ही तो मैं एक चीज और यहाँ बात कर रही थी, क्योंकि हम थोड़ी देर से एक खास एंगल पे ये बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं काउंटर नैरेटिव के लिए। काउंटर नैरेटिव के हवाले से शायद ये इतनी डायरेक्ट मेरे तजवीज ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स होते हैं तो सोशल लिसनिंग के हवाले से एक तो हमारी एक इनपुट हम यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, और हमारे जैसे लोग या हमारी सोच से मिलते जुलते लोग जो हैं वो वहां जाके हम भी अगर अपना रिएक्शन वहां भी डालना शुरू करें तो आई थिंक एक वो जो डिस्कशन जनरेट हो रहा है लोगों में मुख्तलिफ तबकों के साथ, क्योंकि वहां हम ये देख सकते हैं मोस्टली मेरा यहाँ तक ख्याल है कि यूट्यूब पे ज्यादातर जो कमेंट्स आसानी से नजर आ रहे होते हैं वो मेरी सोच है कि जेनजी ज्यादा नजर आ रही है, या पॉसिबली थोड़े बहुत मिलीनियम्स भी हों। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैंने एज अ उस्ताद मैंने खुद मैं अपनी तरफ से समझती हूँ कि एक मेरा नेग्लेक्ट ये है, लेकिन कुछ अरसे से मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश शुरू की है कि मैंने कभी उन पे कमेंट खुद नहीं किया जाके, मैंने देखा उस पर बात की, अपनी क्लास में शेयर किया, लेकिन मैंने उस डिस्कशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनी। और इसलिए मुझे लगा कि आज का जो इनवाइट जब मेरे पास मिस तस्नीम की तरफ से आया था तो मुझे लगा शायद मैं इतने अरसे से एक डिस्कशन जो क्लास में करने की कोशिश करती थी अपने स्टूडेंट्स के साथ,
आज मैं एक और लाइव डिस्कशन में हिस्सा लूं और अपनी तरफ से कोशिश करूं इस डिस्कशन को समझने की, तो मुझे लगता है यूट्यूब वगैरह पे हम उनकी वीडियोस के नीचे जाके हम भी अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं, एक कॉन्वर्सेशन को और डेप्थ और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत शायद निस्बतन आसान होगा हमारे लिए, एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे, कि हम जाएं और एटलीस्ट एक कमेंट डाल दें। हो सकता है बात का रुख थोड़ा और किसी तरफ भी मुड़ सकता हो, कुछ और नए डिस्कशन में एक एंगल आ जाए। तो ये मेरी एक छोटी सी तजवीज या कह सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने सोचा शेयर करूं। थैंक यू। Thank you so much. I'd like to say that, अगर YouTube के नीचे आप comment कर रहे हैं, तो we're assuming that somebody is reading those comments and taking notes, So I think it would be effective in that case. Anyway, we want to move on to the other. हमने काफी परवरिश की काफी बात कर ली है. अब, also we want to talk about dramas like मैं मंटो नहीं हूँ. मतलब मैं मंटो के मतलब जो writer हैं, he's been a controversial character, and so let's move on to this conversation, and let's talk about, do you think is it glorifying problematic behavior या इसको expose कर रहा है? मैं मंटो नहीं, I don't know, कोई देख रहा है? I've watched it. भी मैंने बीच में से देखना छोड़ दिया हुआ था because I had other things to be I was preoccupied. लेकिन I will say this. मुझे जो चीज समझ नहीं आती कि like what is the basic plot of Manto in that sense, because एक तो, and which is surprising because I have watched some of Khalilur Rahman's plays, and for the most part, as much problematic as his plays are, उसमें उसकी play में एक चीज है कि at least you understand what's going on in the story. His earlier dramas, you at least understand what's going on, the characters' motivations, where is the plot going. इस पे इस तरह लग रहा है जैसे he's just showing a bad side about female college students, and he's showing female students as being very openly flirtatious and basically trying to entrap men. But uske alawa, he's not doing anything else with that story, and it just seems like it's just a very big piece to hate on women. And what's more interesting about this person is that production के TV के back end वाले कामों में से he's one of the few people in Pakistan who is known for this. In the sense कि like he is a person जिसको हम बजाय इसके कि we blame the actor and such, हम ये कह सकते हैं कि this writer is problematic, या we can critique him directly. So I find it very strange कि what was his purpose of this drama when there is no purpose in it at all. It's just a very meaningless किस्म का women bashing. But even it's so obvious that, and I've checked the Twitter comments, बहुत से लोग भी confused हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं. Can I go next? Yes. I absolutely second my colleague here, and it started. They have got, without calling it so, a big production, big names, amazing camera cinematography, amazing camera work, amazing framing, color treatment, and of course, I mean, even Sabah Hamid, that really upsets me, even her, and everyone is there, and typical like a puppeteer, exploiting each of them with some moolah and entertaining those viewers worldwide, the North American, Pakistani diaspora and Indian or whoever, who enjoy these little bits. Any sensible person knows it has fallen from grace. There is a conversation across. Has fallen from grace. Every single character he's exploited so right. He is showing what, sorry, pardon my language, what the hell? I mean,
obsessive girl from a very feudal city, industrialist. We hear of these stories कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया. उसको भी, उनके भी ऐसे dialogues as if they can be, absolved of any of these killings. पहले तो वही बहुत बुरी societal वो अनिग्मा उसको तो कर ही नहीं रहा है वो ट्रीट उस कैंसर को कि कितने मजे में जैसे 72 उससे 70 साल से उनके इतने मरे उनके इतने मरे उनके वो बात ही मुझसे हजम नहीं हो रही है कि वो Pupi, he has made, he's taken this character who's mesmerizing on television, a film star. Usko bhi, when he made her dance for a very homely thing, it turned into a mujra of the most decadent order. So unfortunately, very unfortunately, the only redeeming character of Sanam is hardly used, is also playing in the hands of that script. Maybe not so badly. So formula है ये जो इतने viewership आ रहे हैं और हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं roast. Although the reviewers जो हैं Hot Bites and all have started roasting it in the light that you and I are doing it right now, and I'm happy that finally it has come to light very soon. And I think it's not even halfway. I think. और जल्दी से नजर आ गया है कि what the hell is going on. So you are right, I just second that it has absolutely fallen from grace, this big huge production with Thank a you so lot of much. entertainment moolah. Yes, thank you. Or thank you so much for your comments. We'd like to also talk about the other dramas. अभी case number 9 चल there are मुझे two मेरा hands, भी हाथ ऊपर है अभी, please. We have our hands up. राजदा है और नसरीन है. राजदा का भी हाथ है. जी, Okay. should I go? Should I go हाँ, next? Yes, please. Yeah. Please do. जी जी, sorry I was late. रास्ता मेरा नाम है. I've been watching मैं मन तो नहीं है, and I find के जो plot है which revolves around generational vengeance ना, पहले भी है, इसने इसको मारा, उसने इसको मारा, and all of that is very very problematic. And to be honest, the whole story revolves around people taking settling scores, and even encouraging the sons to kill the other. I find that whole thing very, very problematic. I would say the only redeeming thing जो इस ड्रामे की है, it is shot very, very nicely. And I find जो सज्जल का character है, this is my personal view. I find that quite, at giving a very assertive vibes sometimes, not consistently, but you can see somebody who's trying to assert her choices and trying to make sure that she's not forced into something. कभी कभी पीछे आ जाती है when she agrees to marry a person that she doesn't really like, but she is also looking at how she wants to continue her studies, go to college. She, sort of is challenging her father. So there are some glimpses of good assertive behavior जो सजल का character है. Frankly, I think Sanam Said's character is completely lost. In this, मुझे उसकी समझ ही नहीं आती कि उसका character ही क्या है. Apart from being a sounding board for हुमायूं सईद, उसका कोई खास as such कोई उसका influence नहीं है on the story. I feel. जो ये फुप्पू है, I don't know what her name is, Saima, I guess जो है, I think she's to me is overly filmy. So I don't find her acting very natural or very interesting to begin with. But I think her character I'm just talking about the character, not the acting. The character who is trying to assert the right of her niece, I think that has some positive elements. But overall, I think it's a very strange story. And frankly, I'm just stuck on it. I'm just waiting for it to end.
but otherwise story की कोई बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं आती है. So there's Nasreen and there's Khabar. Yes. जी मैं ये कह रही थी कि ओवरऑल बहुत ही मिजोजिनिस्टिक मुझे लगता है कि इवन द फेलो टीचर एक तो वो खुद बहुत पसंद करती हैं, फिर वो मुस्तकिल महमल का केस लाइक यू नो इन हिज फेस करती हैं, और दूसरी बात ये है कि जो औरतों के कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रेंज हैं, और जो आदमी हैं जो गैंगस्टर्स हैं असल में they are coming around as very like softish towards their women's feelings and being driven by them in a way. तो वो भी मुझे थोड़ा सा अननेचुरल लगता है कि अगर ये लोग अगर गैंगस्टर्स हैं और 70 लोग मार के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मुझे वो भी बहुत स्ट्रेंज उनका कैरेक्टर्स लगते हैं. तो ओवरऑल मुझे बहुत मिजोजिनिस्टिक भी लगता है, और एक रिलेशनशिप को मुस्तकिल थोपने का भी एक लिहाज से लगता है. फुप्पो अगर उसको स्ट्रेंथन कर रही हैं तो वो बहुत मैनिपुलेटिव वे में भी एक तरह से उनका मुझे रोल लगता है. बट दिस इज जस्ट माय परसेप्शन. थैंक यू. जी Khabar. हाँ, I find it a very problematic serial. देखना शुरू कर दिया है तो फिर आखिर तक देख रहे हैं, because the title was attractive, so one started. It started, I thought, rather powerfully with the establishing two antagonistic families, but then soon I found it's just too violent. Vengeance, शहर में रहते हुए इस किस्म की vengeance जिसमें एक दूसरे को murder कर रहे हैं, and many unnatural kind of. पहले ही देखते ही आशिक हो गई मियाँ अपने टीचर पे. वो लड़का जो है उसने यूं करके एक लड़की को मार डाला और दूसरी को देखते ही उस पे. I mean, it was all too unnatural for me. There was no development. Beautiful sets, best actors, some doing a very good job. I think both the the dons, the two dons are doing the best work. Even that वो जो लड़का है जो के आशिक हो गया है अपनी कजन पे. बाकी the rest I find हुमायूं सईद तो बहुत ही मुझे गुस्सा आता है उसको देख के. He's boring and he's being pushed by that colleague of his. या फुप्पो उसको जबरदस्ती कह रही है कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तो वो उससे कह रहे हैं कि तुम. I mean, what on earth is it? I find it one of the most, I don't know what to say. इसमें एक तो murders, killing, vengeance, पुलिस ले लेके और यूनिवर्सिटीज में लोग जा रहे हैं. All that I find is normalizing it. कि ये इतना unfriendly environment जिसमें कि आपको constantly. ये एक और भी किसी में अब शुरू हुआ है कि जिसमें कि वो हीरो जो है वो with the gun-toting people coming along. Yeah, I think this should not be normalized, even if it happens in some of our cities. एक तो ये, दूसरा ये कि ये this intrigues are beyond my comprehension, and I am glad that, I mean, I was very surprised कि सब top of the line actors are in that, and सजल का तो character मुझे समझ भी नहीं आया, and I don't think she's even acting to her best abilities, sorry to say. And Saima तो इतनी put on लग रही है. I mean, this is that the way normally anybody who talks to a niece or to anyone. So anyway, I think it's one of the most unnatural, unusual, and does not give any strong. Fine, Sajal may be assertive, but she's assertive in a very, I don't know. It's unnatural, the whole thing. So anyway, it's not my best play, and I'm very upset कि मंटो का नाम लेके क्यों बनाया. जी मैं इस पे कुछ कहना चाह रही थी. जी प्लीज. हाँ, नहीं, मेरा सिर्फ ये था कि एक तो जो अभी लास्ट में ही खावर ने कह दिया कि मंटो का नाम, मतलब मैं मंटो नहीं हूँ. आई मीन, हैविंग रेड मंटो ऑल माय लाइफ सिंस माय चाइल्डहुड, मुझे तो वो ही एक इतना बड़ा ट्रॉमा मेरे लिए है कि उन्होंने मंटो का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया और उन्होंने मंटो के नाम की सत्यानाश कर दिया. नंबर 1. दूसरा, मुझे जो चीज अभी कहा गई कि showing a university girl या college going falling in love with a professor, now that actually comes under sexual harassment or harassment of any kind. Those things are not done these days. आपको तो अंदर कर दिया जाएगा, आपके पर केस भी चल सकता है अगर आप इस किस्म की कोशिश भी करें. Universities don't take these things as lightly as they would when we were students way back in the 70s. शायद उस वक्त हम
उस वक्त भी हम बहुत वोकल थे, अगर किसी टीचर ने हमारे साथ कुछ भी किया तो वी वुड बी गोइंग टू द वीसी इन आवर जुडूस. सो ये सारा कुछ नॉर्मलाइज करके दिखाना, इट ऑल्सो बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज कि आप बच्चियों को पढ़ने भेज रहे हैं या उनको इश्क का दर्स देने के लिए भेज रहे हैं, और दैट ऑल्सो विद अ प्रोफेसर जिसको आप एक पेडिस्टल पे रखते हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं. ये इत्तेफाक से वो ड्रामा है जिसका नाम बहुत चौंका देने वाला था, तो शायद बहुत सारे लोग इस पे हुक्ड इसके नाम की वजह से हुए, और वही एक सेलिंग पॉइंट जो है, आई थिंक वही इसका एक जिसको हम कहते हैं ना कि जी आपको गिराने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो गिराने के लिए आपने आपने उठने के लिए जिस नाम का सहारा लिया था उसने ही आपको गिराया है, बिकॉज आपने मंटो की ऐसी की तैसी कर दी है. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. So thank you everyone for your comments, and now we'd like to move on to case number 9, जिसकी हमारी काफी ग्रुप पे भी डिस्कशन हुई है, बिल्कुल. and we'd like to take that conversation forward because this is a drama that's breaking new ground and is very bold in its depictions. So anybody want to talk about that? I have to leave, I'll say. Okay. जी जी. Because I just have I have an appointment. Okay. मैं कह रही थी कि सिर्फ ये शेयर कर रही थी. I don't know if you are all watching reviews. जो 5-6 reviewers हैं जिनकी वो regular उसमें. I am a big follower of Hot Bites and Hot Review. Already, how sad. This is so brilliant. The writing is brilliant. The acting is brilliant. It is bone-chilling conversation about, firstly, the vulnerability of divorced women, because they are exposed, so they are an easy catch, and that mindset happens in corporate world a lot, and otherwise. वो भी already लोग ये बता रहे हैं कि ये कितना गलत है. So there is a negative narrative against the drama already building up when it has hit all the right notes on all the counts. Acting wise, bold, brilliant acting. चाहे वो offender है, चाहे वो है survivor है, लेकिन ये जो है उसको किस तरह से हमने पिन बट करेंगे. अभी ये शुरू नहीं हुआ है और हम देखना चाहेंगे कि ये, और वो चूंकि उसका इंटरव्यू हो चुका है तो वो कहती है अनफोल्ड होएगा एंड शी फाइट इट टूथ एंड नेल. एंड हु अभी फिजिकल किससे मिली थी मैं इसमें, जो कह रहे थे कि नहीं हम आपको बताएंगे नहीं. somebody participant of the play, actor or who did I meet? उनका नहीं, वो हाँ प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. वो कह रहे थे कि आप आगे आगे देखिए ये कैसे लड़ेगी. सबसे बड़ा इसका ये है. तो hats off to Shahzeb Khanzada and all the production team for sticking by it. लेकिन प्लीज अक्स या हर नैरेटिव उस पे वो उन लोगों को शट अप कॉल दें जो इसको ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये कितना गलत दिखाया है इन्होंने. क्यों दिखाया है, यानी अच्छे अच्छे रिव्यूज की क्यों ये इन्होंने ये बात क्यों बताई है कि भाई एविडेंस जो था और वो कपड़े बहुत मैटर करते हैं और वो डीएनए उसी वक्त होना, ये कौन सी बात है. सो बस मेरा यही था कि इट्स गोइंग वेल एंड आई एम 100% hooked to it. And I think I support Aks if it's going and writing a report on it or sending an official comment. Thank you, everyone. Thank you. I'm sorry, I will put it on when I reach my destination if the conversation is on. Thank Okay. you, Tasneem, for inviting me. Love everybody. Thank you. Khuda Hafiz for the moment. Thank you. Joining. And now Nasreen, I think we'll give Nasreen up. Please share your views on this. Nasreen, Rashida, Inji, all three. Yeah, all Ji, three. thank you. So having worked very closely with War, actually War being born in my house, और वो सिर्फ एक जुमले से शुरू हुई थी कि कराची में डेकोइटीज हो रही थी इन द टर्बुलेंट 90s, और उसमें जो रेप्स हो रहे थे वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे. तो वो एक जुमला था कि वी नीड टू ब्रेक द साइलेंस ओवर रेप, और उसकी वजह से फिर वॉर बनी, और फिर वॉर के साथ मैंने काम किया. तो मैं इस ड्रामे के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आई मीन इट्स लाइक
awesomely well researched, और बहुत इसमें मतलब असली उन्होंने एफर्ट उसी पे की है, और वो सारे पॉइंट्स ये अवेयरनेस भी है, क्योंकि सेक्स क्राइम इज इन आवर फेसेस लिटरली एवरी मोमेंट ऑफ द डे। तो बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है, और हर लिहाज से, एक्टर्स के लिहाज से, मतलब हर लिहाज से इट्स जस्ट वेरी 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 कमेंडेबल। और वो जो आ रहे हैं कि जी अब सीन है या क्यों बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वही एफर्ट है ऑफ ब्रेकिंग द साइलेंस एवरी विच वे। थैंक यू जी। I think Thank you. Raj, yeah. My turn, Tasneem? Yeah, जी, जी, Rajna, yeah. जी. Okay, I already जो साथियों ने कहा, that's what I wanted to say. I think where we are always picking on faults, this is one play that needs our 100% backing. The plot is excellent, the script is very good, the acting is very good. The way some nuances have been presented so far. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत मुश्किल कंटेंट को डायरेक्टर हैज आल्सो sort of dealt with it in a very sensitive way. So for me, it's scoring 10 on everything except that it is not an easy watch. It is a difficult watch. It is a disturbing watch when you watch, because it's obviously a very intense thing. But I want to commend everybody involved in this production, whoever they are, the producers, the director, the writer, they have really taken on almost something that you don't see regularly, no? So it's a trend-setting sort of a play. Let's see how it goes forward, and I would be very upset if there are people who find it something that shouldn't be on the screen. They should very much be on the screen, and I think they need all our commendation and our support. बहुत ज़बरदस्त. I personally wrote to the director also to say how much I was enjoying I'm not enjoying, I really like it, but it's not something that you watch. It's not something that you can watch without it affecting you. So it is a disturbing play to watch, and I just hope that there are not too many episodes. अगर कम episodes में ख़त्म कर दे, so I think it will stay well. But they really need our support for this. Excellent, absolutely brilliant work. Thank you, Rajna. Inji. Thank you. Ji. So I would point two things, one good and one bad about this show. Ek to, the most interesting thing is that this is Sabaa Kamar's, I think, fourth time that she's playing a rape victim, or any sort of victim in which she goes through something, but then she raises her voice about it. मुझे इनका, because I've seen some of her dramas, some old ones, Cheek bhi Yeah. thi, and I think it was also Dastan, in which she was also a rape victim, although I think she was killed off in that. Like, this is like, iska, like I will say this, she's consistently played victims who rise up for themselves. So I will say this for Sabaa Kamar, she's, I don't know what her personal views are, lekin it's commendable ke itne arse se she has such strong views on this topic that she comes to these dramas all the time and portrays and in good productions also. The other thing, however, about case number 9 is ke, because this was my first view I also had of Karze Jaan, in that a brilliant story, a brilliant theme, but then in the end they derailed the whole thing. So as much as I want to praise case number 9, I want to see how they go on with the story as a whole. क्योंकि जो ओवरऑल स्टोरी जिस तरह आप डिपिक्ट करते हो उससे इम्पैक्ट करता है कि व्हाट्स द ओवरऑल थीम एंड द मैसेज यू वांट टू गिव. एंड एज मच एज डेफिनेटली उसके जो शुरू के एपिसोड थे केस नंबर 9 के, दे ब्रिलियंट, but at the same time we should be wary about how this goes, because ratings के मामले में और ऐसे चीजों में कई दफा ऐसे होता है कि अच्छी भली स्टोरी को ये लोग इतनी गंदी एंडिंग देते हैं which totally destroys the entire message of the show, या फिर इस तरह होता है कि
वही बात, it's also the length. If it's a shorter drama, then its impact would be greater. But when you also if you start making it longer and longer, then जो purpose था उस story का और जो message था, it also gets undermined. So I do feel that we should see what case number 9 has to offer, because इस तरह के ड्रामे काफी से आ चुके हैं in which they show a very interesting premise, but then they destroy that premise altogether just for ratings, or if they feel that they want to go for a more traditional route. Thank you. Okay. Right. जी, हाँ नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से जो गुल ने भी बात की, फिर राजदा ने भी कि जो द नेगेटिव रिस्पांस, और ये सिर्फ मीडिया रिव्यूज पे नहीं है, ये आम जिंदगी में भी है. आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल, फैमिली फ्रेंड्स, जिन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा ओपन है ये ड्रामा, बच्चे भी देख रहे होते हैं, इन्हें नहीं दिखाना चाहिए इस तरह की चीजें. एंड माय आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज बीन कि अव्वल तो ये हर चीज छोटे बच्चों को बैठ के देखने की होती भी नहीं है, तो देयर हैज टू बी अ पीजी जो हमारे ड्रामों को भी फॉलो करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को या जो भी गार्जियन है घर में उनको भी करना चाहिए कि दिस इज आइदर 16+ और 18+, क्योंकि जितनी ओपनली इन्हें दिखाना था वो बहुत जरूरी था. हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, पढ़े लिखों को भी नहीं पता, और जो बेचारे नहीं हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि एविडेंस का होना या ना होना कितना कितना जरूरी होता है फॉर अ केस टू मूव फॉरवर्ड. और यही इसमें दिखाया गया है कि इफ यू wash up after a rape, if you wash your clothes after a rape, how you lose out on evidence. और ये बहुत bitter truths है, मतलब this is a fact, but ये बहुत 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 ज्यादा bitter चीज है, इसको swallow करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है जो हर वक्त पे काम कर रहे होते हैं, और जो नहीं कर रहे होते, जो आम व्यूअर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही ये उनके ऊपर से भी चीजें गुजर रही हैं, ये क्या हो रहा है. So I think it's a good learning experience. अगर इसको थोड़ा सा हम और easy करके बताएं, तो मे बी बिकॉज मेरा हमेशा पर्सनल ये रहा है कि रोना धोना थोड़ा कम होना चाहिए. You have to show the woman strong. If she's decided to come out and speak about it, then the rona dhona has to be on the side. हमारे यहाँ रोना धोना पता नहीं क्यों हम इसको एक सिंबॉलिक वो ले आते हैं कि जी रोना धोना दिखा रहे हैं, so वो रोना धोना becomes problematic for me. Otherwise case number 9 so far is going great, और जो नेगेटिविटी है उसको हमें काउंटर करना है. आई थिंक वो हम अपने अपने फ्रंट पे कर ही रहे हैं, रिव्यूज में कर रहे हैं या कमेंट्स में कर रहे हैं. बट यस, देयर आर पीपल हु फील कि ये बहुत ओपन है, एंड ऑब्वियसली अगर आप 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चा ये आपसे पूछेगा जी ये इसका मतलब क्या है, ये इस चीज का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली यू हैव नो आंसर. सो देयर हैज टू बी अ पीजी, एंड देयर आल्सो हैज टू बी ट्रिगर वार्निंग कि जी ये ट्रॉमेटिक content है. So people who have either been through it or who know people who have been through it, should be mindful of watching it. ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, because हम इन चीजों को नहीं सोचते और हम इसी वजह से मुश्किल में फंसते हैं कि हमारे यहाँ ट्रिगर वार्निंग नहीं आ रही होती और हमारे यहाँ पीजी नहीं होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि एक और कॉन्वर्सेशन चल रही है कि सबा कमर का जो कैरेक्टर है, व्हाई डिड शी सकम टू पेरेंटल प्रेशर, and then soon after, and also like about the mother tossing the clothes. Why would the mother toss the clothes? Somehow that didn't gel with me, as they are not negative parents. But अक्सर ये चीजें and I think ये खावर मुमताज has responded, बहुत important point है कि हम ये चीजें depict की जाती हैं to to educate the audience about what So ये this was an important point, because अक्सर हम नेगेटिव चीजें देखते हैं या कुछ लॉजिक के अगेंस्ट कोई चीज जा रही होती है, तो it's been depicted to educate people
about how to handle these things, you know. So I just thought okay, I'll make this point because this conversation was happening in the chat. Okay, anybody else want to say something about this? I think we are all done. You can wrap up, Sheherazad, and then we are good. So I think it's been a very rich and thought-provoking discussions. I think कुछ हमारे points आए, especially feedback के regard से, and so thank you everyone for bringing your honesty and your insights to this forum. Obviously हमारे ड्रामे जो हैं वो we सिर्फ हमें नहीं mirror कर रहे, ये भी दिखा रहे हैं कि who are we becoming also. बड़ी पावरफुल स्टोरी टेलिंग आजकल हो रही है और बहुत अच्छे नए नए ड्रामे भी आ रहे हैं दैट एंड आई फील लाइक slowly these producers are realizing that they can educate through these dramas, and we are shifting the focus from the typical stories जो हमारी होती थी एक ज़माने में जो अभी भी चल रही हैं, but it's good to see fresh content like this. It really is. और अभी I think कल ही I was discussing with Tasneem कि वो शरपसंद भी शुरू हुआ है जिसमें वो they're showing a single woman living on her own and the kind of conversation that sparks in the neighborhood. So it's great to see कि इस किस्म का मीनिंगफुल आर्ट जो है जो कि काफी अनसेटलिंग भी होता है लेकिन हम देख रहे हैं वो and it's great. So as viewers like we discussed here कि हम अपना feedback दे के we can also help shape the stories. एक तो वो स्टोरीज हमें शेप कर रही है लेकिन हम अपना फीडबैक दें एंड दिस इज अनदर डिस्कशन दैट वी नीड टू कंटिन्यू कि हम किस तरह अपना फीडबैक देते रहें दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लोर and how that and hopefully giving feedback over time will help shape the stories that are shaping us. So let's keep watching, questioning, and pushing for stories that that go beyond entertaining us, and that also challenge us and open up new spaces. So thank you again, everybody, for joining us, and thank you to Axis team and Hopscotch for creating this space that where we can have these conversations. Thank you so much. Thank you so Thank much, you. everybody. Thank Thank you. you. Hafiz. 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 Thank you everyone. Allah Hafiz.